مکہ مکرمہ خداوند عالم از وضع بس ان اول بیت موضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ دناری خانہ چی کہ مبارک و میمنت میت پی چھانگی مبارک مکے کا دسنارنا کہ پہلا یاران نہیں فرس حضرت ابراہیم نا حضرت اسماعیل پیغمبر دی بزرگ پیغمبر جس کے دست مبارک کا بنا سوان چاند دی خانہ کعبہ پی کے انتظر حج بیت اللہ الحرام چنگل یا تا لیسن خوش قسمتن خداوند عالم حضرت ابراہیم نے اسماعیل زی مکہ بنا تصویر گپے کا خدا یہ درگاہ اللہ نفس دعا بس وَإِذْ يَرْفَعَ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پہلا دعا بوجھو بس کریں جب خانہ کعبہ بنا پشتی پانچ سنارنا بلند چھانا خدا درگاہ دعا بس خدا کی مختصر نچی عمل کو رس قبول بس جنوب پیغمبر نیسی دعا بس پر پی دینام پی کے یادن زیادہ اچھے گئے اور دوسرا یہاں چیچی در بنا وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ معمولی مکان چی کا معمولی جگہ چی کا انتان چھنت کہ خداوند عالم اس مکہ معظمہ بنا تنفذالا یہ پیغمبر بزرگ نسبی دست مبارکی کا بلند چھانا مکہ مکرمہ دن منا ایک تو دعا بس دوسرا خداوند عالم اس عہد و پیمان نس حضرت ابراہیم نے اسماعیل کرنا چی عہد نس خدا در بنا ان طہر بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود یعنی فرس یعنی حجاج محترم کو فرس دی خانہ کعبہ نارنا خداوند عالم اس دی پیغمبر بزرگ نیس بھی کنا عہد و پیمان نیس کہ جو پاک کو متحر بسیو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو لداخ حج کمیٹی کی اور سے تمام میڈیا فریٹرنیٹی کے برادران کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے ہمارا آل انڈیا ریڈیو کی ریپریزنٹیٹیو ہو، سب کا تہہ دل سے آپ کا اس کوریج کے لانے کا تہہ دل سے شکریہ. تو لداخ حج کمیٹی بننے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری کوششیں ہمارے حجاج کرام کے لیے جو بھی مسائل درپیش آتے ہیں اس پہ ہم جی جان سے کوشش کر رہے ہیں. تو ابھی آپ نے ایک اہم سوال پوچھا کہ پاسپورٹ ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں خاص کر پاسپورٹ سیوا کے اندر کو لے کر، دیکھیے جب پہلی بار 2022 کے دسمبر میں حج کمیٹی کا اسٹیبلش ہوا تو حج کمیٹی بننے کے بعد ترنت ہی جو ہی ہمارا حج کا اناؤنسمنٹ نوٹیفیکیشن نکلنے سے پہلے ہی ہم نے ایک 4 دن کا ایک پاسپورٹ کیمپ لگایا. اس سے بہت سارے اسی 4 دن کے کم وقفے میں ہی 522 پاسپورٹ کا ہم نے یہاں پر رجسٹریشن کرایا، جس میں سے ہمارے بہت سارے حجاج کرام جو اسی سال ہی حج پہ جانا تھا 3 دن کے اندر ہم نے وہ پاسپورٹ لا کے حج پہ تشریف لے گئے وہ حاجی صاحب. یہ بھی ایک حج کمیٹی کا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے. تو اس کے بعد ہم نے مدعو کیا آنریبل یونین منسٹر MOS جو ہماری ایکسٹرنل افیئر کی مس میناکشی لیکھی جی کارگل تشریف لائے، اس کو بھی اسپیشل ہم نے دعوت پہ بلایا اور ان کو ریکویسٹ کیا کہ جو خاص کر لداخ میں ضلع کارگل کے اندر بہت سارے حج کا ہی نہیں باہر جو پڑھنے والے ہمارے اسٹوڈنٹس سب اس
इस पासपोर्ट इशू से फेस कर रहे थे, तो उन्होंने ये श्योरिटी दिया कि जल्द ही हम कारगिल के अंदर पासपोर्ट सेवा के अंदर सेंक्शन करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेंक्शन भी हुआ। तो उसके बाद एक टीम यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए भी भेजा, तो यहाँ से जो भी रिपोर्ट उनका जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो भी भेजा। तो बदकिस्मती की बात, लास्ट ईयर 31 अक्टूबर जो यूटी को फाउंडेशन डे के दिन वहाँ से डायरेक्शन आया कि इस दिन आपको यहाँ पर फंक्शनल करना है। तो उससे पहले हमारा जो 2 स्टाफ है श्रीनगर ट्रेनिंग के लिए भी भेजा, तो कुछ इश्यूज़ हो गए ख़ासकर स्पेस को लेकर, तो प्रॉपरली उस डेट पे वो फंक्शनल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आज तक ये पेंडिंग रहा है। तो उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट की ओर से ये एक डायरेक्शन आया जी, अगर आपको स्पेस का इशू होता है तो एक MOU जो एक्सटर्नल अफेयर और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की ओर से एक MOU साइन हुआ कि यहाँ पर हमारे पोस्ट ऑफिस की ओर से वो स्पेस प्रोवाइड करेंगे। तो वहाँ पर ये पासपोर्ट सेवा केंद्र है जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे। तो अभी भी इन प्रोसेस में है। तो आज ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब खुद यहाँ पर इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हमने इन्वाइट किया, यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उन्होंने भी श्योरिटी दिलाया। आगे भी हम मिनिस्ट्री से टच में है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत ही जल्द हम ये सहूलियत जो है आम पब्लिक के खिदमत में हम ये कोशिश करेंगे जल्द ही यहाँ पर शुरू हो। सर, आपने इस साल सऊदी अरब का दौरा भी किया और वहाँ पे हज्जाज किराम के लिए क्या सहूलियात आप दस्तयाब रखेंगे उसका जायज़ा लिया, तो क्या कहेंगे इस सिलसिले में? जी सईद साहब, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह भारत सरकार की ओर से बिल्डिंग सिलेक्शन एंड इंस्पेक्शन कमेटी में मेरा नाम भी मिनिस्ट्री की ओर से आया, तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस साल मखसूस मैं ख़ुद जाके सऊदी अरब में ख़ासकर मक्का शरीफ में और मदीना मुनव्वरा में जो भी सहूलियात यानी कि होटल का इंतज़ामात किस तरह से होते हैं, मीना अरफात का हर जगह मैंने दौरा करके वहाँ पर देखा। और बेहतर से बेहतर होटल, बहुत से अच्छे होटल, बहुत सारे जो होटल्स थे बहुत पुराने थे, कुछ कंडीशन में नहीं थे, वो भी हमारे बिल्डिंग सिलेक्शन कमेटी ने रिजेक्ट किया, बहुत सारे रिजेक्ट किया, बहुत सारे नए होटल लिया। ख़ासकर जो अजीज़िया के एरिया में जो पिछले बहुत पुराने होटल को रिजेक्ट किया, ख़ासकर नसीम एरिया जो अजीज़िया से बाहर है जहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन बन रहा है, उस एरिया में हमने बहुत सारे नए होटल लिया। और ख़ासकर जो हुजाज किराम का हर एक का एक तमन्ना होता था कि सारे हमारा हुजाज जो है इकट्ठे रहें, जिससे आसानी होता है, आपको पता है सारे इकट्ठे रहने से। तो इस साल इंशाल्लाह श्रीनगर एम्बार्केशन पॉइंट से ही हमारे 240 हुजाज किराम एक ही जहाज़ में जाएंगे। मक्का पहले हमारा फर्स्ट जो है इस साल मदीना तशरीफ़ ले जाएंगे, मदीने में 8 दिन का होगा, फिर उसके बाद मक्का की ओर। मदीने में भी एक ही होटल में रहेंगे और मक्का अजीज़िया में भी सारे एक ही बिल्डिंग एक ही होटल में रहेंगे। तो 2 खादिमीनुल हुजाज जो इस साल 2025 में उनका नाम चेंज करके स्टेट हज इंस्पेक्टर के नाम से उनको ये किया है, तो वो भी साथ रहेंगे। एक हमारा बहुत ही डेडिकेटेड सईद अल्ताफ़ साहब जो पिछले साल गए थे, इस साल वो दोबारा सिलेक्ट हुए हैं, वो है। और एक पिछले साल के पिलग्रिम्स में ही थे, अभी जो ओरिएंटेशन में है जनाब याह्या खान साहब, वो भी हमारे स्टेट हज इंस्पेक्टर के फ़राइज़ अंजाम देंगे और हाजियों की खदमत में लगे रहेंगे। तो इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर सहूलियत, जो भी मसाइल हो, आपको पता है कि हज जो ही हज ख़त्म होने के फ़ौरन बाद ही हम रिव्यू मीटिंग लेते हैं और उनका फ़ीडबैक सजेशन वगैरह हर एक पिलग्रिम्स का लेके मिनिस्ट्री को हम भेजते हैं। तो मिनिस्ट्री वहाँ से हमारा KSA यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरब में जो हमारा कौंसलेट जनरल है, मैं ख़ुद मखसूस इस साल भी कौंसलेट जनरल से हमारी पर्सनल मीटिंग हुई और ख़ुसूसी जो हमारे लद्दाखी पिलग्रिम्स के लिए हमने ये गुजारिश किया, जो ट्रॉपिकल जो हमारे एरिया के हिसाब से, आपको पता है हर 10 किलोमीटर में हमारा लैंग्वेज चेंज होता है, कल्चर हमारा वो है, उन सब को ध्यान में रखते हुए सारे हुजाज किराम एक ही जगह एक ही होटल में एकोमोडेट करने का हमने गुजारिश किया था। इंशाल्लाह वो भी सारा हमारा पूरा होने जा रहा है। इंशाल्लाह उन्होंने श्योरिटी किया, ऑलमोस्ट जहाज़ का हमारा हो गया है। तो इस साल जो है नई बात जो है हमारा लेडी विदाउट महरम, यानी कि जो लेडी हज पे जाने की तमन्ना रखती थी, जो 50 ईयर प्लस हो, यानी कि जिसको कोई अपना जो मुहर्रम कोई भाई खावंद जो भी उनके ब्लड रिलेशन में हो, उसके बगैर नहीं जा पाता था।
फर्स्ट टाइम में हमारा 7 विडो लेडी विदाउट मुहर्रम 2023 में 7 गई, 24 में हमारा कोई एप्लीकेशन नहीं आया, 25 में इस साल हमारा 3 एप्लीकेशन है। तो उनके लिए अलग सा इंतज़ाम रखा है, यानी कि जितने भी जम्मू कश्मीर के यानी कि जितने भी लेडी विदाउट मुहर्रम है वो सेपरेटली उनका बिल्डिंग भी अलग होगा, उनका खादिम अलग होगा, और उसके अलावा भी पूरा व्हाट्सएप के थ्रू वर्चुअली जो भी सहूलियत, जो भी उनको मसाइल पेश आए, वो यहाँ पर हज कमेटी ऑफ यूटी लद्दाख के हमारे कोऑर्डिनेटर हो, हमारे यहाँ पर मास्टर ट्रेनर्स जितने भी हैं उन सब के राबिते में रहते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं साल ब साल हम जो भी उनका छोटे छोटे मसाइल हो वो सारे हल करने का हम कोशिश करते हैं। सर, इस साल की ओरिएंटेशन प्रोग्राम के पोस्टर में हमारे मौजूदा एमपी के फोटो दिखाई नहीं दे रहे, क्या बात? जी देखिए, ये एमपी के हिसाब से नहीं है, जो हमारा फॉर्मर एमपी साहब है वो हज कमेटी का मेंबर है, हज कमेटी के मेंबर के हैसियत से रखा है यहाँ पर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से यहाँ पर ये फ़ोटो में नहीं लगाया है। आपको पता है हमारा लद्दाख हज कमेटी में 6 मेंबर्स हैं, ले से हमारा नज़ीर साहब और मिर्ज़ा साहब हैं, कारगिल से अली चंदन जी, ज़हीर बाबर है, मैं हूँ, और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। वो अभी जब तक ये कमेटी चलेगा तब तक जमा जिक्र रहेगा, उसके बाद नया एमपी आए, नया कोई भी गवर्नमेंट अपॉइंट करे, उनका फ़ोटो लगेगा। सबसे पहले तो मैं तमाम हुज्जाज किराम जो इस साल हज पे जा रहे हैं उन सबको मैं अपनी तरफ से और पूरे कौम की तरफ से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि इनकी जो अमाल है वो बारगाह इलाही में कबूल हो, और इंशाअल्लाह उनसे गुजारिश भी है कि हमारे लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे पूरे लद्दाख के लिए, हमारे कंट्री के लिए दुआ करें कि अमन अमान से रहें और हमारा देश जो है तरक्की में आगे बढ़े। बहुत ही बेहतरीन एक प्रोग्राम यहाँ पे ओरिएंटेशन कम ट्रेनिंग प्रोग्राम इन्होंने रखा था, चूँकि परसों हज ऑल इंडिया हज कमेटी के चेयरमैन साहब भी तशरीफ़ ला रहे थे, हम लोग एक ही फ्लाइट में थे, तो उनको करगिल में आने थे, तो मैंने सोचा था करगिल में उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन लेह में उनके तबीयत कुछ ख़राब हो गई तो उनको वापस जाना पड़ा। खैर इंशाअल्लाह फिर कभी उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हम सबको पता है पिछले कई सालों से जब से लद्दाख का अलग जो हज कमेटी बनी है तब से इस तरह के प्रोग्राम और हज के लिए अलग कोटा हमारे लद्दाख के लिए रखा गया है, और उसके कारण बहुत सारे लोगों को जो है हज पे जाने का मौका मिल रहा है। और हज कमेटी इन कई सालों में अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से भी अच्छे से अच्छे तरह सहूलियात फैसिलिटीज़ जो हमारे हाजियों को दे सके, उसमें वो लोग काम कर रहे हैं। उसी का एक कड़ी है कि जो भी हुज्जाज किराम इस साल हज पे जा रहे हैं उनको ट्रेनिंग रखी हुई है, बहुत ही एक्सपीरियंस लोगों को यहाँ पे लाके उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे कुछ इश्यूज़ है, ख़ासकर हमारे पासपोर्ट ऑफिस को लेके हैं। हमारे इंशाल्लाह आने वाले सालों में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे लद्दाख में भी हज हाउस बने, लेह में भी बने, करगिल में भी बने, और इन सारे चीज़ों पे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अभी मजाज साहब से मेरा बात हो रहा था, ख़ासकर पासपोर्ट जो ऑफिस है उसके लिए यहाँ पे चाहे ज़मीन के बारे में हो, चाहे उस ऑफिस के बारे में हो, काउंसिल से इंशाल्लाह आने वाले हमारे सीसी साहब भी बाहर हैं, उनके आने के बाद अली मजाज साहब को भी मैंने बोला है कि हम लोग काउंसिल के साथ बैठ के अपनी तरफ से जो चीज़ें हमको तैयार रखनी है वो कम से कम हम लोग तैयार रखें, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हम टेकअप कर रहे हैं, क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस जल्द से जल्द खोलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ख़ासकर ज़्यादा हमारे हज पे जाने वालों को या ज़ियारत पे हमारे लोग जाते हैं, उनको पासपोर्ट का जो मसला है वो बहुत गंभीर मसला है, उनको ले जाना पड़ता है, श्रीनगर जाना पड़ता है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में काउंसिल हम लोग सब बैठ के इसमें कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। बाकी यही कहूँगा कि इंशाल्लाह साल ब साल किस तरह से हम अपने हाजियों को अच्छे से अच्छे फैसिलिटीज़ दे के जो है उनको हज भेजें, उस पर इंशाल्लाह काम करेंगे।
مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔